السلام علیکم سر، آپ نے یہ بات کی کہ ہمیں نیلی روشنی کے خبر کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ نے ایگزامپل دی کہ آگ کے خبر کے بارے میں، برف کے خبر کے بارے میں. جیسا کہ برف میں نے دیکھی ہوئی ہے برف کیا، تو مجھے پتہ چلے گا، میں جب سوچوں گا اس کے بارے میں کہ ٹھنڈی کیا ہے، وہ رنگ کیا ہے اس کا، اور اس طرح کے احساس میرے اندر ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، تبھی احساس پیدا ہوا میرے. اب نیلی روشنیاں نہ تو میں نے دیکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، نہ میں نے عرش معلیٰ دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب میں کنسیڈر کر سکتا ہوں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے. تو پہلے میرے اندر تو ان کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کے اندر وہ سوچ کیسے آئے گی، اور وہ جو سوچ ہے وہ ریپیئر کیسے کرے گی. ریپیئر ہونے کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرتے ہیں انسان کے لیے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. آپ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی سبب پیدا ہوتا ہے پہلے، ٹھیک ہے. آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی سبب ہوتا ہے. آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جگہ کٹتی ہے اور آپ مر جاتے ہیں. تو ریئر کیسے ہوتی ہیں وہ جسٹ لائٹ آپ کو جو کنسیڈریشن کرتے ہیں کیسے. اچھا، آپ کے کوشچن میں دو حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے نا وہ انجینئرنگ سے متعلق ہے کہ اس کی کیمسٹری کیا ہے، وہ چونکہ اس سیمینار کا پارٹ نہیں ہے اس کو مدد کرتا ہے. لیکن جو پہلا پارٹ ہے آپ کا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں نیلی روشنی کیسی ہے، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پارٹ. سورج مکھی کا جو پھول ہوتا ہے کون سے رنگ کا ہوتا ہے؟ انسان کی آنکھ اس کو یلو دیکھتی ہے. جو بھمرا ہوتا ہے بلیک کا وہ اس کو جامنی دیکھتے ہیں، اور جو مویشی ہوتے ہیں بھینسیں وغیرہ یا گائے وغیرہ وہ اس کو براؤن دیکھتے ہیں. اوریجنل کلر کیا ہوگا؟ یہ سارے کلر آپ کے بنائے ہوئے ہیں، ان ہوا کے خمسہ کے بنائے ہوئے ہیں. اصل کلر وہاں پہ نہیں ہے، یہ آپ کلر بناتے ہیں. اب آپ سے کوشچن نیلی روشنی کی طرح آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیلیفورنیا ایک جگہ ہے یا پیرس ایک جگہ ہے، تو آپ کے دماغ میں کوئی خاکہ نہیں بنتا. آپ نے نہیں دیکھا ہوا، نہ ٹی وی پہ کسی جگہ پہ کہیں پہ بھی نہیں دیکھا ہوا، لیکن ایک موسم کا خاکہ آتا ہے. انسانی ذہن کی ایک کیمسٹری ہے یہ جو روحانی علوم سکھائے جاتے ہیں اس کے اندر ایک پورا میتھڈ سکھایا جاتا ہے. شروع میں جب آپ کا ایٹم پڑھایا جاتا ہے تو آپ نے کبھی نہیں الیکٹران پروٹون سے دکھایا دیکھے ہوئے، لیکن آپ کو ایک اسٹیپ سے گزارا جاتا ہے. تو انسانی ذہن کی یہ سب سے پہلی جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ یہ والی ہے کہ آپ کے اندر جو بھی چیز آتی ہے وہ خیال کے تھرو. تو ہم سب سے پہلے اس کی پریکٹس کریں. یہ جو نیلی روشنیوں کا ہے اور اس میں یہ کلیئرلی چیز کی جاتی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ آئندہ سے گائیڈ لے سکتے ہیں. اس میں نیلی روشنیوں میں آپ نے بالکل یہ تصور نہیں کرنا کہ وہ نیلے رنگ، اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. بہت سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے، وہ کہتے جی مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 10 مہینے ہو گئے، نیلی روشنیوں کا کور کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا. وہ وجہ اس کی یہ ہے، وجہ میں بتا دی کہ اصل کلر نیلا ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہے. آپ کا جو توجہ چلی جاتی ہے اس کے باقی مظاہرے سے، یہ ایک تصور ہے جو آپ نے. اسی طرح سے برف دے ریت ہے، برف خود کچھ نہیں ہے، تو آپ اس کی کوئی بھی ایسا بنا رہے تھے، کاغذ نام رہتے تھے، ضرورت نہیں پڑتا. اصل چیز کیا ہے؟ برف کی کیفیات ہے، کاغذ کی کیفیات ہے. تو نیلی روشنیوں کی کیفیات ہے. وہ کیفیات آپ کیسے کھینچیں گے؟ جتنی آپ کے تصور میں گہرائی پیدا ہو، جتنی آپ کی توجہ اس کی طرف موجود ہو. اس کے لیے شاید صاحب نے جیسے بھی کہا حضور علیہ السلام ہمارے یہاں میں جو تخلیقی نظام میں اللہ نے آتا اس کو سب غور فکر کرتے ہیں. غور فکر کا لا ہے، تو لا کہتا ہے وہ چیزیں. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے کھانا کھینچتے ہیں نا، اس طرح سے ذہن کی بھوک وہ چیز کھینچتی ہے. میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ بھی سوال آ رہا ہے، وہ تو کھینچتی ہے، تبھی آپ کے اندر روحانی لوگ ہوتے ہیں. وہ دوسرا جو کوشچن ہے نا آپ لوگ ریپیئرنگ کیسے کرتی ہے، یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ مجھ سے یہ کہیں گے یار ایک کمپیوٹر کیسے بنتا ہے، تو اس طرح ٹیکنالوجی پہ آئی ایم سوری ہوتا ہے. یہ مطلب یہ نشچت کا کوشچن ہے.
ये होता है जब हमें कोर्स करवाते हैं ना, ये पूरा बताते हैं ये प्रोसेस बनता कैसे है। और जैसे अल्जाइमर का मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ पे पूरा ये क्वेश्चन होना चाहिए वो सेल डैमेज कैसे हुआ, यू शुड हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, वो सेल डैमेज कैसे हुए, रिपेयरिंग तो अपनी जगह है, पहले तो डैमेज होगा ना, वो डैमेज कैसे होगी, तो वो डैमेजिंग आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि न्यूरॉन की कैसे फायरिंग होती है, सिनॉप्टिक की किसी वोल्टेज जा रही होती है, कहाँ कहाँ स्पार्क करके वो करते हैं, ये निश्चित से अलग बात है। एनी अदर क्वेश्चन? सर मैंने सर ये नाउमीदी मायूसी ये सब चीज़ें लोगों में कहना बहुत आसान होती है, लेकिन जिस इंसान से गुजर रही है वो बहुत पेंसिल चीज़ होती है, और मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ। अब मैं 28 साल में ज़िंदगी को गुजार चुकी हूँ और बहुत कम इसमें ऐसे लम्हे में सेटिस्फाइड रही थी, और इस वक्त अंदर से मैं नाउमीदी या परेशानी या मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है मेरा इतना लूज हो गया, हालांकि मैं जॉब कर रही हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं अंदर से मैं नहीं हूँ जो मुझे होना चाहिए। आपने कहा ये सब कुछ रिपेयर हो सकता है क्या, ये 28 ईयर जो मैंने गुजारे उसका पेन क्या ये कम हो सकता है, और ये मतलब मेरे ऊपर ऐसा वक्त भी आया है कि मुझे अपना सांस रुका हुआ महसूस हुआ कि मेरा दिल बंद होता है, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं जल्दी फायर करने से थक के ऐसी मुझे नींद आ गई। तो ये सब चीज़ें जो आपने कहीं जो थी यहाँ पे रिपेयर हो सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता हो सकता शायद ये लेक्चर मेरे लिए इंतज़ार हो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है? एक इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन का पेन आप कैसे कम कर सकते हैं? नाउमीदी मायूसी वो जो आप कहते हैं एनवायरमेंट से कट जाता है, एग्जैक्टली बंदा करता है, और ये उसी को पता होता है जो करता है कि वो मतलब ये क्या सिचुएशन होती है। अच्छा पहले मैं आपसे सवाल लगा देता हूँ, ये प्रेजेंटेशन यूट्यूब के ऊपर आ जाएगी थोड़े देर के बाद, अगर आप लोगों ने अपने ईमेल एड्रेस छोड़े हैं ना तब सबको ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ये यूट्यूब के ऊपर आ गई है, तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। अभी वो डिस्प्ले हो रही थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि वो आप सिर्फ स्किप कर जाते हैं उसमें, वो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। अगर आपने ईमेल यहाँ पे छोड़ा है वो हमारी लिस्ट में आ जाएगा। उसका बेसिकली मकसद ही यही है कि ये जिन चीज़ों को हम लोग सिंपल अगर हम मायूसी का वर्ड यूज करेंगे ना तो इट्स एन एक्सट्रैक्शन फॉर अस अनटिल अनलेस यू गो थ्रू इट। जब आप उसके अंदर से जाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपके अंदर कांटों को भरा हुआ था और एक एक खींचा जा रहा है, तकलीफ में क्या गुजरते हैं। अभी हमने बहन पिछले दिनों प्रोग्राम किया मिलाद कर रहे हैं मुसलसल, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु की ज़ात के बारे में ज़्यादा प्रोजेक्शन दी जाती है। व्हेन वी डिग इट आउट हमें ये पता लगा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी हुई थी तो आधा किलो सोना दिया था। जस्ट इमेजिन क्या प्राइस होगी। 20 ऊँट दिए थे। मैं अभी पिछले दिनों दुबई में था, मैंने सुर्ख ऊँट की कीमत पता की, सर 2 करोड़ रुपए क्या एक ऊँट है, 40 करोड़ में। ये सैयद सुलेमान सॉरी शिबली नमानी की बुक में लिखा हुआ है। ये जो है ना, मतलब मैं रेफरेंस भी आपको दे रहा हूँ इफ यू वांट दैट जी, हक महर के हवाले से उनकी बुक में लिखा हुआ है। शिबली नमानी सैयद सुलेमान नदवी उनके स्टूडेंट है, तो उसमें लिखा हूँ। तो सीरत से चल रही उसकी तरफ से होगा, उसमें देख लीजिए उन्होंने सीरत की किताबें लिखी है, उसके अंदर बड़ा क्लियर करके ये लिखा हुआ है। ये इतनी उन्होंने दी थी। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला 300 लोगों को खाना खिलाया करती, 500 लोगों को। ताहिरा उनका लक़ब था। उनका जब इंतकाल हुआ वो पता किस हालत में हुआ? दवाइयां ना होने की वजह से, दवाइयों के पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे। खातून देखें 40 करोड़ रुपए के ऊंट, उनका इंतकाल किस हालत में हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम है ना वो ये होता है कि जब अल्लाह ने आपको ऊपर लाना होता है ना तो आपके ऊपर ये चीजें पड़ती हैं सारी की सारी। अच्छा अगर आप हसास दिमाग नहीं हो तो फिर मसला ही नहीं, कहते हैं चिकना गड़ा है, ये मसला ही नहीं। लेकिन अगर आप हसास दिमाग हैं आप उसे महसूस करेंगे। महसूस करने के ऊपर जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है रिएक्शन के ऊपर, कि आप महसूस करके कहते हो बू आएगी। अच्छा वहां पे ऐसे भी लोग बैठे हुए होते हैं जो वो देख रहे होते हैं। अभी ये अल्लाह के दोस्त जितने भी हैं, अब अब्बा के पास जो लोग जाते हैं सारे अल्लाह माफ करे मुझे नहीं कहनी चाहिए, 100 दफा तौबा करता हूँ, बदबूदारी आते हैं। हाँ हम अब लिस्ट के अंदर है।
सारे बदबूदार जाते हैं। अब चीज क्या है कि जो भी उनके सामने वो चीज आई है जो उनको ऊपर उठाना चाह रही थी, उसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट कर दिया। तो जब भी एक आदमी एक्शन के ऊपर रिएक्शन करता है ना, तो बेसिकली वो उसका गेम खेलता है। ये एक मैनेजमेंट का असूल है। अगर आप उसके ऊपर दोबारा एक्ट करें ना, जो कि बाय प्रैक्टिस होता है और आप एकदम से नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम। पहले आप इतना रहते हो, 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 फिर ऐसे हिसाब ऊपर लेकर जाते हो। तरबियत का टाइम लगता है, हमारे यहाँ भी यही होता है। तो स्लो वो तरबियत करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर उठाते हैं। फौजियों की जो, अगर आप में से कुछ लोगों का बैकग्राउंड हो, फौजियों के अंदर ये होता है कि जब उनको शुरू में ट्रेनिंग करवाई जाती है, बड़े अच्छे बंक बेड होते हैं, लांगरी होता है खाना पकाने वाला, ये पहला ईयर चल रहा है। फिर सुबह जल्दी उठना होता है, ठंडे पानी से नहाना होता है, थोड़ी सी खप होती है। आहिस्ता आहिस्ता दूसरा चौथा पांचवा साल जब उनका बनता है ना, तो उस वक्त 12 महीने में से 6 महीने वो इधर गुजारेंगे, बाकी 6 महीने जंगल में गुजारेंगे। अब वो लांगरी वाला खाना नहीं है, अब बेड जंगल है। बेसिकली वो उसको बिल्ड कर रहे होते हैं। अगर वो उस पर रिएक्ट करेगा तो वो चीज नहीं सीख पाएगा जो वो सिखाना चाह रहा है। ये वाला प्रॉब्लम है। जब हम रिएक्शन देते हैं ना, उसके नेगेटिव असर और वो रहते हैं। अच्छा, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। तो हम देखते रहते हैं ना, ये वाली सारी चीजें ये नजर आती है। मैंने बताया ना फेस के ऊपर, ये सारा पता चलता है, पूरी बॉडी के ऊपर पता चलता है इसका, और बड़ा डेंजरस होता है ये। इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप वो माहौल अडॉप्ट करें जो कि आपके अंदर ये वाली चीजें, आपकी तवज्जो इससे हटाए स्लो से। और ये जो स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं, बेसिकली वो माहौल अडॉप्ट करवाने की ट्राई करते हैं ताकि वो जहालत में से निकल आए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये बातें कहना, मायूसी, ना उम्मीदी, ये वर्ड नहीं है। रूहानियत में क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि हैवानी लेवल की सलाहियत इस्तेमाल करें तो हैवानियत, हैवानी लेवल की सलाहियतें हैं ना। इंसान के लेवल की सलाहियत इस्तेमाल करें, इंसानियत। अच्छा, रूह के लेवल की सलाहियतें, वो रूह बहुत ज्यादा होंगी और रूहानियत है। जब हम लोग इस सिस्टम के अंदर इन होते हैं, फौजी वाली मिसाल देने की मैंने आपको किस लेवल बताई है, शुरू बहुत मजे मजे की होते हैं। क्यों सर? बड़ी अच्छी होती है ना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वही हाल होता है। आधा 6 महीने हमें उधर रहते हैं और 6 महीने जंगल में। लेकिन ये सिर्फ तरबियत के दौरान होता है। तो रूहानियत में जिस कर्ज के साथ आम इंसान गुजरते हैं, उसमें से जो रूहानी स्टूडेंट होता है उसको भी गुजारा जाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो जो पूरा सिस्टम है जो उनके अंदर आया, आप वो पूरा देखें। अगर उनका किस्सा आपको है, पढ़ लीजिएगा। बीवी बादशाह उठा के ले गया, 100 ख्याल ध्यान में आता होगा। पैगंबर है वो। फिर एक बच्चा गया, फिर दूसरा बच्चा गया, उसके बाद खुद जब वो उनके नाम पे कुरान निकला, पहली दफा निकला, लोगों ने कहा नहीं बहुत शरीफ आदमी है। फिर वही सारे लोग कहने लगे नहीं यार देखो शक्ल से ऐसा लगता है, रह कैसा, अल्लाह माफ करे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुरान में वो जो किस्से दिए हुए ना, उनकी वजह है। वो आपको बताते हैं तमाम पैगंबरों के साथ जो एसोसिएटेड लोग थे और इनके जो तरबियत याफ्ता लोग हैं, वो सारे के सारे इन तमाम कैफियत में से गुजरते हैं। और इसलिए गुजरते हैं, जब आपने मायूसी का लफ्ज लिया, मेरे अंदर से पूरी प्रोजेक्शन आई है। ये ताहिर साहब का भी यही हाल होगा और भी हमारे बहन भाइयों का यही हाल होगा जो ट्रेनिंग के अंदर है। तो वो उसको फील करते हैं, उसमें से गुजरते हैं, और वो बिल्कुल यही होता है, अंदर कटता है, डूबता है। अच्छा, आप परेशान है कि अरे क्या मुझे मैं इससे निकलना चाह रहा हूँ, और यही होता है, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो, सारी चीजें करते हैं। लेकिन फिर उसका तरीका यही है कि जब आपको ये रियलाइज हो जाए तो आप कोशिश करें कि एक ऐसा एनवायरनमेंट लें जो दैट कैन पुल यू आउट। यू ऑलवेज नीड समवन टू पुल यू आउट। ये होता है, टीचर आपको हमेशा चाहिए होता है। तो वो माँ की शक्ल में भी हो सकता है, बहन की शक्ल में भी हो सकता है, किसी भी शक्ल में।